اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی حج تمتع اور حج اسلام جو ہے اس کے واجبات کے بارے میں، اور ہم نے جان لیا تھا کہ 5 چیزیں جو ہیں واجب ہیں ہمارے عمرہ تمتع میں، اور اس کے بعد جو حج کے ارکان تھے اسے ہم نے جان لیا کہ عرفات، مزدلفہ، رمی جمرہ عقبہ، قربانی، حلق، طواف زیارہ، صحیح ہے۔ 11-12 کا مبیت، 11-12 کی رمی، اور کیا مولانا طواف زیارت کی نماز، سعی صفا و مروہ کی، پھر اس کے بعد طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز۔ اب آ جائیے والمفرد یقدم الحج، حج تمتع اور حج افراد و قران میں یہی فرق ہے مولانا۔ جو حج تمتع کرتا ہے یعنی ہم لوگ کون سا حج کریں گے؟ حج تمتع، اس میں عمرہ پہلے کیا جاتا ہے بعد میں حج کیا جاتا ہے، لیکن مفرد والا کیا کرے گا؟ یقدم الحج، حج کو مقدم کرے گا، ثم یعتمر، پھر وہ عمرہ کرے گا، عمرتن مفردتن، لیکن وہ کون سا عمرہ کرے گا؟ عمرہ مفردہ، بعد الاحلال، یعنی حج کا احرام اتارنے کے بعد، والقارن کذالک، اور حج قران کرنے والا بھی اسی طرح سے۔ بس مفرد اور قارن کا فرق یہ ہے مولانا، لیکنہ یسوق الہدی عند احرام، یاد رکھیے گا قارن اور مفرد پر قربانی واجب نہیں، لیکن متمتع پر قربانی عید کے دن واجب ہے۔ لیکن قارن کے لیے ہے کہ لیکنہ یسوق الہدی، مستحب ہے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ساتھ لے کر جائے، یسوق الہدیہ، قربانی کو ساتھ لے جائے، عند احرامہ، احرام کے بعد، جب احرام باندھے تبھی اپنی قربانی اپنے ساتھ لے لے۔ وشرط التمتع، اب آ جائے کہ تمتع کی شرط کیا کیا ہے۔ النیہ، حج تمتع کب صحیح ہوگا؟ نیت کے ساتھ، پہلے نیت ہے ووقوعہ فی اشہر الحج، اور اسے انجام دینا حج کے مہینوں میں، صحیح مولانا؟ ووقوعہ فی اشہر الحج، اور اسے انجام دینا اشہر حج میں۔ وہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ وہی شوال وذو القعدہ وذو الحجہ، صحیح ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ، یہ 3 مہینے کس کے ہیں؟ حج کے مہینے۔ وَإِتْيَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، اور حج و عمرے کو انجام دینا ایک سال میں۔ ہاں مولانا، ایسا نہیں کر سکتا کوئی کہ 2025 میں جائے اور جا کے عمرہ کر کے چلا آئے، پھر 2026 میں جائے اور جا کے حج کرے۔ تو یاد رکھیے گا مولانا، سمجھ لیں، یہ نہیں ہے کہ آپ شوال میں جائیے عمرہ تمتع کر لیجئے پھر حج میں اینڈ ٹائم پہ جائیے حج کر کے آ جائیے، نہیں، عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد مکے سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ شوال میں اگر عمرہ تمتع کیا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذو الحجہ تک مکے ہی رہنا ہے۔ وَإِنشَاءُ إِحْرَامِ الْحَجِّ مِن مَکہ، اور حج کا احرام پہننا مکے سے۔
जैसे उम्र तमत्तो का एहराम कहां से बांधा था उसने? मीकात से। अब जो एहराम बांधेगा कहां से? हज का, मक्के से। वशर्तुल बातीन, और बाती की शर्तें यानी इफराद व क़िरान की शर्तें। नियत, पहली क्या है? नियत है। ववुक़ूअहु फी अशहुरिल हज, और उसे अंजाम देना हज के महीनों में। वअक़दुल इहराम मिनल मीक़ात, और एहराम का बांधना मीक़ात से। अब इनकी मीक़ात कौन सी होगी मौलाना? इनकी मीक़ात वही है, यानी हुदैबिया, जुअराना, तनईम, समझ रहे हैं, जो पास पास की मीक़ातें हैं। अब मिन मंज़िलिही, या उसका खर्च की मीक़ात हो जाएगी। इनकान दूनल मीक़ात, अगर उसका घर मीक़ात से करीब हो, यानी मीक़ात दूर है, उसका घर करीब है, तो उसका घर ही उसके लिए क्या है? मीक़ात है। समझ में आई बात? हाँ, दूनल मीक़ात यानी अगर मीक़ात से करीब उसका घर है तो क्या है? उसका घर उसके लिए मीक़ात होगा। वयजूज़ु लहुमा, और उन दोनों के लिए जायज है। यानी किन दोनों की बात हो रही है यहाँ? मुफरिद और कारिन। क़ब्लल मदी अलल अरफ़ात यजूज़ु लहुम अत-तवाफ़, उनके लिए तवाफ करना जायज है। क़ब्लल मदी मिन अरफ़ात, अरफ़ात जाने से पहले कि वो तवाफ़े ज़ियारत कर लें, तवाफ़े हज, जो हज का तवाफ है, उनके लिए जायज है कि वो क्या कर लें? अरफ़ात जो हज का पहला वाजिब है, वहां जाने से पहले, चूंकि तवाफ़े ज़ियारत कब वाजिब है? 10 तारीख या 10 के बाद, लेकिन वो पहले अंजाम देना चाहें तो उसे दे सकते हैं। उसका तरीका भी आ रहा कैसे देना है उनको। वयजूज़ु लहुमा अत-तवाफ़, जायज़ है उनके लिए तवाफ, क़ब्लल मदी या इला अरफ़ात, अरफ़ात में जाने से पहले। लाकिन्नहुमा युजद्दिदान तलबिया, लेकिन ये दोनों तलबिया की तजदीद करेंगे, यानी बार बार तलबिया पढ़ेंगे। लाकिन्नहुमा, लेकिन ये दोनों युजद्दिदान तलबियता, तलबिया की तजदीद करेंगे, इंद कुल्ल तवाफीन, हर तवाफ में। इस्तिहबाबन, मुस्तहब है। वयजिबु अलल मुतमत्तिइ अल हदिया, और वाजिब है मुतमत्ति पर हदी।
वला यजिबु अलल बाकीन, लेकिन जो बाकी हैं उन पर वाजिब नहीं है। यानी बाकी से मुराद कौन है? मुफरिद और कारिन। यानी वाजिब है कुर्बानी का देना मुतमत्तिअ पर, बाकी पर वाजिब नहीं है। अब आ जाइए अल बाबु सालिस फिल इहराम, तीसरा बाब इहराम के बारे में। जो हमें कहां से पहनना है? अभी तक तो शुमार था ना सब चीजों का, लेकिन अब क्या है उसके बारे में हम मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं इन्नमा यसिह्हु मिनल मीकात, इहराम सही है कहां से? मीकात से। मीकात के अलावा आपका इहराम सही नहीं है। और मीकात कितने मौलाना? वहिय सित्ततुन, और ये 6 हैं। ले अहलिल इराक अल अकीक, अहले इराक के लिए कौन सा है? अकीक है। अकीक एक लंबी चौड़ी वादी है जो तकरीबन 48 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है। कितना? 48 किलोमीटर। वअफ़ज़लुहु अल-मसलक, अफ़ज़लुहु यानी अफ़ज़लु ज़ालिकल वादी अकीक। चूंकि अकीक हमने कहा 48 किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है, तो उसमें अफ़ज़ल है अल-मसलक। कौन सी जगह? मसलक की। मसलक कौन सी जगह है? लिख लें, इराक की जानिब से वादी का पहला हिस्सा। इराक की जानिब से वादी का पहला हिस्सा। व औसतुहु गमरा, फिर उसके बाद जो है इहराम बांधना कहां से? गमरे से, जो वादी का वसत है। व आखिरुहु ज़ातु इरक़िन, और उसका आखिर ज़ाते इर्क़ है। ये वादी का आखिरी हिस्सा। और ये मक्के की जानिब से सबसे करीब हिस्सा है उस वादी का। मक्के की तरफ से सबसे करीब हिस्सा, नोट लगा लो, करीब है, जो मक्के से तकरीबन 94 किलोमीटर पड़ता है। नाइन्टी 4 किलोमीटर। हाँ, यानी वहां से जाते इर्क़ से मक्का कितना है? 94।
فلا يجوز عبورها الا محرما فلا يجوز عبورها. تو یہ جو بات یعنی یہ جو میقات ہے اس سے عبور کرنا، اس سے پار کرنا جائز نہیں ہے الا محرما، سوائے یہ کہ احرام کے ساتھ. محرمن آئے گا مولانا، محرمن یعنی سوائے احرام کے. وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں کے لیے یہ دوسرا میقات ہے مولانا، مسجد الشجرہ، مسجد شجرہ ہے. مدینے سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے مسجد شجرہ. وعند الضرورة الجحفہ، اور اگر راستہ وغیرہ بند ہو جائے تو جحفہ جانا ہوگا. اور یہ جحفہ میقات ہے مولانا اہل شام کا. وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ اختیاراً، دکھ رہا ہے، اور اختیاری حالت میں یہ اہل شام کا میقات ہے. ہاں، مسجد شجرہ لکھ لیں، مدینے سے 12 کلومیٹر دور ہے. اور جحفہ 22 کلومیٹر. نہیں مولانا، 22 بتا رہے ہیں، لیکن میں گوگل سے دیکھ رہا ہوں تقریباً 185 کلومیٹر ہے. کتنا؟ 185 لکھیں. وہی میں نے کہا کہ صحیح نہیں لگ رہا، چونکہ کئی گھنٹہ لگ جاتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹہ جوفا سے لگتا ہے. میں جوفا ہی سے گیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وَلِلْيَمَنِ يُلَمْلَمْ، اور یمن کے لیے تیسرا میقات کیا ہے؟ یولملم ہے. اور یہ پہاڑ ہے جو مکے سے 94 کلومیٹر دور ہے. وَلِلطَّائِفِ قَرْنُ الْمَنَازِلِ، اور طائف کے لیے قرن منازل ہے. اور قرن منازل بھی یولملم کی طرح دور ہے، یعنی 94 کلومیٹر.
वलहज तमत्तु, और हज तमत्तु के लिए मीकात क्या है? मक्का। पहले भी जिक्र किया हमने। हज तमत्तु करने वाला हज का ihram कहां से बांधेगा? मक्के से। वमन कान मंजिलुहु अक़रब मिनल मीकात, और जिसका घर मीकात से करीब हो। फमंजिलुहु मीकातुहु, तो उसकी मंजिल उसका मीकात है। और छठी मीकात मौलाना फख, जो मक्के से 6 किलोमीटर दूर है। और ये मीकात बच्चों के लिए, लिस्सबियान, किसके लिए? बच्चों के लिए है। मक्के से 6 किलोमीटर दूरी पे। ये फख वही है मौलाना, फख समझ रहे हैं, जहां पे औलादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तकरीबन 70 या 80 अफराद थे जिन्हें शहीद कर दिया गया था एक जगह, फख में। ठीक है ना? कई इल्मा ने क्रिया किया है। वमन हज अला तरीक़िन अहरम मिन मीक़ात अहले, कह रहे जो जिस रास्ते से हज करे उस रास्ते वाले की मीक़ात उसकी मीक़ात है। नहीं समझे आप? जैसे अगर हम जोफा के रास्ते से जा रहे हैं तो जोफा हमारे लिए मीक़ात, मदीने के रास्ते जा रहे हैं तो मस्जिद शजरा हमारे लिए मीक़ात, यमन के रास्ते जा रहे हैं तो युलबलम, चाहे भले पाकिस्तान इंडिया के रहने वाले हो। तो मन हज अला तरीक़िन, अगर कोई किसी रास्ते पर हज करे, वमन हज अला तरीक़िन, अगर कोई किसी रास्ते पर हज करे, अहरम मिन मीक़ात अहलिह, तो उस रास्ते वालों की मीक़ात से वो इहराम बांधेगा। वह फख्खुन लिस्सिबियान है, 1 नंबर का हाशिया है, नीचे देखिए। फख इस्म बिहरिन, एक कुएं का नाम है, करीबतुम मिन मक्का, जो मक्के से करीब है। व तअखीरुहु इलैहि रुख्सा, और वहां तक उसको इहराम के बिना जाने की क्या है? रुख्सत है, इजाजत दी गई है। ले रिआयत ज़अफ़िहिम अन तहम्मुलिल हर्रि वल बर्द, सही है, इस रियायत के साथ कि वो कमजोर होते हैं कि ठंड और गर्मी को क्या कर सकें? बर्दाश्त कर सकें, इसलिए वो अपने कपड़े में ही जाएंगे मीकात से। जब फख पहुंचेंगे तो उनके वली, यानी उनके जो जिम्मेदार हैं, मसलन कह रहा हूं अगर कोई 6 महीने का बच्चा गोद में जा रहा है तो क्या उसको भी जोफा से इहराम पहनाना जरूरी है? कहा नहीं, उसको आप ऐसे ही लेके जाइए। जब फख में पहुंचिए तो फख पहुंच के उसके कपड़े उतार के उसको इहराम के कपड़े पहना दीजिए। ये शरीयत ने हमें क्या दी है? इजाजत दी है, छूट दी है। सही है। वला यजूज़ुल इहराम क़ब्ल हाज़िल मवाक़ीत, इंशाअल्लाह यहाँ चल लेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।